Class is in the session. Assalamu alaikum. I hope you all are doing your best, loving yourself and treating it right. I just went to this one very weird interview experience and I literally learned a lot through it. So I have to share it with you guys. I'm literally gonna spill everything for my girlies. So if you haven't subscribed already, go subscribe right now. Sometimes it's not like कि हमें पता नहीं होता कि हम deserve क्या करते हैं and we are worthy of so much more. We always know inside us कि हम कुछ बड़े के लिए बने हैं. Take it for friendships, take it for relationships, take it for jobs. You guys always know what you want, right? Settling often comes from this fear. Like it's actually rooted in fear. You have this fear कि अगर ये नहीं मिल रहा तो इससे बेहतर कभी मिलेगा भी नहीं, तो obviously I'm gonna accept that. Which is so freaking wrong of you. So wrong of you. मैंने बहुत सारे साल सेटल होकर भी गुजारने की कोशिश किया, एडजस्ट करते हुए भी गुजारने की कोशिश किया, लेकिन एट द एंड यू आर द वन जो कि इमोशनली ड्रेन हो जाता है. यू आर द वन जो फिजिकली ड्रेन हो जाता है. यू आर द वन जिससे अपनी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, खाया पिया नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही है. You are the one, literally you are the one जो कि सबसे ज़्यादा इस सब में बेयर कर रहा होता है just because you settled. And I have like a ton of experiences I can tell you guys right now, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी which I don't want. मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती obviously, but I'm gonna tell you like some ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए कि what exactly I'm talking about. So let's go. उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी. पता क्या होता है, whenever you lower your standard for anything, literally anything, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, you lower your standards, they start thinking that is your exact standard. They start thinking they are fulfilling your standard. वो फिर नवाब बन जाते हैं. उन्हें लगता है कि आपको उनसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता. Since you are not realizing your worth, कोई और क्यों ही करेगा. That is how simple it is. So there was a time when I was in this one friendship. I'm not gonna explain everything obviously, but I was once in this friendship. I stayed there because I simply did not want both of us to be alone. Like सिर्फ मैं ये नहीं चाहती थी कि वो भी अकेली रहे, right? बातचीत तो obviously मेरी सबसे रहती है, सबसे मेरी पूरी क्लास से बातचीत होती है, मुझे इतना कोई ऐसा मसला नहीं था. There was no desperation, but I truly craved a deep friendship, you know, a friendship that is like sister like friendship, और अगला बंदा आपकी बहन बन जाते हैं. एक होता है पूरी क्लास से बातचीत होना, एक होता है you are literally investing your energy, your time and your emotions into this one person, right? Like जिसकी वजह से वो इंसान आपके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, you know. Especially for me, I am a person जो बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, which I am currently really working on because it will make you go through shit experiences if you keep doing that. उसके लिए I think सबसे ज़्यादा important होता है बाउंड्रीज बनाना. मैंने बाउंड्रीज नहीं बनाई थी, मुझे बाउंड्रीज बनानी नहीं आती थी. पहले शुरू में तो आई स्टार्टेड कटिंग ऑफ सम पीपल इन माई लाइफ ताकि मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाए, थोड़ी बेहतरी आ जाए, जो कि लिटरली आई. बाउंड्रीज जब नहीं होती हैं तो यू ओवरडू. मैंने तो लिटरली एक स्ट्रेंजर्स लाइक मैं तो लिटरली आम लोगों के लिए भी, इवन अगर स्ट्रेंजर्स भी होते हैं ना, उसके लिए भी इतना कर देती थी कि बस खत्म है बात, कि बस आई डोंट नो इफ इट, आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैक्ट कि मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ खराब ना हो, सब मुझे अच्छा समझे एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने कभी किसी बात से डिसएग्री किया ही नहीं. And I got used as hell. I don't want कि तुम में से कोई भी इस्तेमाल हो क्योंकि मैं इतना हो गई. मुझे शुरू से पता था that what exactly I value in friendship. And it is the most painful part कि आपको हमेशा पता होता है what you value in a friendship, what you value in a relationship, what you value in a job opportunity, what you value in life altogether. You always know that. लेकिन फिर भी क्या होता था कि अगर कोई like दोस्त है, मेरी दोस्त बन रही है, मैं आज तक कभी रिलेशनशिप में रही नहीं, तो मैं आपको उस तरह से उसके हवाले से इतना कोई सही एडवाइस दे नहीं सकती क्योंकि आई फील लाइक फिलहाल तो मैन आर नॉट वर्दी ऑफ योर टाइम. अभी एटलीस्ट अभी वी आर जस्ट 18 गर्ल, प्लीज. फ्रेंडशिप्स में लाइक कोई 3 से 4 चीज़ें भी टिक कर रही होती थी ना मेरे स्टैंडर्ड्स की, मैं कह देती ठीक है. और 4 अगर नहीं कर रही है, 2 अगर नहीं कर रही है, मैंने फिर भी बना लिया दोस्त. वाई गर्ल वाई. उसके बाद सबसे ज़्यादा इश्यूज मेरी ज़िंदगी में, मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए थी, मुझे एक डीप फ्रेंडशिप चाहिए थी. ठीक है, 4 बातें वो अगर टिक नहीं भी करी, चलो 3 तो कर रही है, तो वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स. जोकर, यू कैन नॉट बी बेस्ट फ्रेंड्स अगर नहीं कर रही है 4 तो. मैंने अपने आपको हमेशा ये बताया दैट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म. ठीक है,
इतना सा टाइम रह गया है, जो गुजार लो। इसी सब के दौरान आई केप्ट मेकिंग प्लान्स विद पीपल। लाइक मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ प्लान्स बनाए। मतलब बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी थी, ये लोग बुरे थे, या वो लोग अच्छे थे, मैं बुरी थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, ठीक है। सब अपनी जगह ठीक होते हैं, गलत भी होते हैं। हर किसी, कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के पास अपने अपने मसले हैं। होल पॉइंट इज के ये सब मेरे से अलाइन नहीं करता था, मेरी वैल्यूज से अलाइन नहीं करता था, जो मैं बनना चाहती हूँ और जो मैं जानती हूँ कि मैं हूँ, उससे अलाइन नहीं करता था। लेकिन मैंने फिर भी प्लान्स बनाए, मैंने फिर भी दोस्ती चलाई, मैंने फिर भी जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं गई भी, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया। गाइस, मुझे लगता था, अच्छा चलो जॉब का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे लगता था कि इफ़ आई एम 18 एंड आई डोंट हैव CV एंड आई जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, मैं जा सकती हूँ, ठीक है। आई हैड दिस बिलीव सिस्टम इनसाइड मी, और एक होता है ना ब्लाइंड डिल्यूजन, वो था मेरे अंदर कि मैं तो घुस ही जाऊँ, जो कि ठीक था, मैं घुस गई। लेकिन इस सबसे मैंने ये सीखा कि आप घुस तो सकते हो अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, बट अनटिल अनलेस आपकी ग्रिप स्किल पे नहीं है, आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। मैं तो खैर लॉन्ग टर्म रही भी नहीं। दे लिटरली यूज्ड मी एंड थ्रू मी ऑफ लाइक दैट कि आप 18 है, फोकस ऑन योर स्टडीज। जो इतना काम आपने मेरे से ले लिया था भाई, वो खैर आई गॉट यूज्ड, और उसकी मैंने वजह आपको बता दी है। So that is the whole thing. But you need skill in order to earn through corporate or stuff like that. After these plans and after these friendships, at the end of the day, I was the one who felt drained to hell. इमोशनली इतना ड्रेन हो गई थी कि मेरे से अपनी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे अंदर कितना डर है, मेरे अंदर कितना डर है, ठीक है, कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, और जो मैं चाहती हूँ वो मुझे एग्जैक्ट चीज़ मिलनी नहीं है, मेरे हाथ में नहीं आनी है। दिस इज़ फियर। और इस फियर को मैंने ओवरकम कैसे किया? इट्स लिटरल, यू नीड टू हैव अ ब्लाइंड फेथ एंड ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान। मैं तुम्हें बताती हूँ, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कामयाब हैं, आप उनकी सक्सेस स्टोरीज कभी निकाल के देखो। दे वर वर्किंग जॉब्स, दे वर वर्किंग, वो सब कर रहे थे जो उनके हाथ में था, उन्होंने वो किया। लेकिन फिर भी कुछ एकदम ऐसा हो जाता है, कोई उन्हें मेंटोर मिल जाता है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल आती है जिसको वो हाँ कर देते हैं, वो रैंडमली कुछ भी शुरू कर देते हैं। लाइक रैंडमली एक बंदा सोचो जो अपने कॉर्पोरेट से तंग है, उसने एकदम से बिजनेस शुरू कर दिया, उसके जहन में आया, उसने कर दिया। उसके नसीब में लिखा था एक अच्छा बिजनेसमैन बनना, उसके नसीब में लिखा था वो सब कुछ जो उसने मांगा था, उसके लिए रिसोर्सेज खुद बनते गए। तो ये बात एक बार जहन में रखनी है कि अगर आज कुछ अवेलेबल नहीं है और आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको मिलेगा। देयर इज दिस वन गर्ल जो कि मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा, शी इज इनटू सेल्स एंड ऑल ऑफ दैट, शी वर्क्स हार्ड, वो करती है काम। लेकिन हाउ इट ऑल स्टार्टेड, शी वॉज वर्किंग एट कॉफी शॉप्स एज अ सोशल मीडिया इंटर्न। वो इस तरह से ये वाले काम कर रही थी, और एकदम से उसी की यूनिवर्सिटी में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया एंड ही टोल्ड हर के कैसे सेल्स के थ्रू वो इतना ज़्यादा कामयाब हो गया एंड ही इज़ मेकिंग मनी थ्रू सेल्स। उसने वो बात सुनी, उसके नसीब में लिखा था सेल्स से इतना ज़्यादा ऊपर जाना, वो अपेयर हो गया उसकी ज़िंदगी में, उसने उसे ये बता दिया। उसके बाद उसने मेहनत का हाथ नहीं छोड़ा, शी डिड डोर टू डोर सेल्स। उसमें उसने रियलाइज़ किया कि अच्छा हाँ मैं इसमें अच्छी हूँ। आई जस्ट वांट टू से कि तुम जितनी भी मेहनत अभी कर रहे हो और जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आई प्रॉमिस ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय अल्लाह ताला। ही इज सीइंग ऑल ऑफ दिस, और इसका फल तुम्हें हर सूरत मिलेगा, किसी ना किसी तरह से ज़रूर मिलेगा। दिस ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट इन वेन। अल्लाह पे ट्रस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तुमने बिला वजह परेशान होते रहना है। इमेजिन तुम उस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो जो कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, जो कि इस इक्वल में कहूँगी कि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो या हो रही हो। अल्टीमेटली वो तुम्हें नहीं मिलनी क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू स्ट्रेसिंग आउट सो मच। खैर ये तो मेरे जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने तुम्हें सब बता दिया कि यू डोंट नीड टू, यू डोंट हैव टू। लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का भी मुझे पता है आजकल सीन चल रहा है, ईजी। जो किस्मत में लिखा होता है वो मिल के रहेगा। जो यूनिवर्सिटी जिसकी सीट पे बैठना आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपने वहाँ जाके बैठ जाना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप जाके एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप जाके टेस्ट नहीं दोगे, तो मुझे बताओ कैसे पता लगेगा कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है। आपको निकलना तो पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है, और वो बेहतरीन होगा। हम डर रहे होते हैं और हम ये भूल जाते हैं कितनी बड़ी है ये दुनिया, हाउ मच अबंडेंस इज हेयर इन दिस यूनिवर्स, एंड अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अभी दुनिया में। देयर आर फ्रेंडशिप यू हैव नेवर मेट,
देयर आर सो मेनी डोर्स जो कि अभी खुलने हैं तुम्हारे लिए और अभी खुले नहीं है. देयर आर अपॉर्चुनिटीज यू हैव नेवर सीन येट, प्लेसेस यू हैव नेवर बीन टू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ जो कि अभी तक तुमने नहीं देखे. तो नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर तुम्हारा मसला ना, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक तो होनी नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में. मेरी ज़िंदगी में भी अब नहीं है. खैर पहले थी, पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम सो फ्रिकिंग ग्रेटफुल फॉर दैट. कभी कभी अगर मैं हो भी जाऊँ तो आई ट्राई टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल या फिर चीज़ें जो कि मुझे अच्छा फील कराती हैं मेरे बारे में. कोई ना कोई एक आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपको मोटिवेट करता होगा. अगर नहीं है, जस्ट गो टू द प्रेयर मैट एंड प्रे, बिकॉज अल्लाह ताला से ज़्यादा आपको आपकी वर्थ कौन ही बता सकता है. मुझे बताओ. नॉट लाइक कि कोई नहीं है तो चली जाओ. लाइक ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज अल्लाह. जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो ना, अल्लाह भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता. आई हैव सीन दिस थ्रू एक्सपीरियंस. सो आई वांट टू टेल यू दिस वन एक्सपीरियंस ऑफ माइन इन विच जहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अपने आप को और अपनी लाइक वो कंटेंट जो मेरे से अलाइन करता है और मेरी वैल्यू से अलाइन करता है, मैंने उसको सेलेक्ट किया था इन किसी पैसे या किसी एक्सपीरियंस के ऊपर. ब्रांड ने रीच आउट किया एंड उन्होंने मुझसे बेसिकली एक क्लोथिंग रिलेटेड कोई काम था, बट द फैब्रिक एंड ऑल ऑफ दैट इट वॉज नॉट अलाइनिंग विद मी. लाइक जो फैशन मैं अपने इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहती हूँ, आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था. आई रियली लिसन टू माई गट एट दैट पॉइंट और मैंने मना कर दिया. हालांकि वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी. लाइक वो काम तो था ना एटलीस्ट. नहीं पता, आउट ऑफ नो वेयर डेज लेटर एक सोशल मीडिया मैनेजर ने मुझे रीच आउट किया. शी वॉज मैनेजिंग लाइक सोशल इवेंट्स ऑल्सो. तो उसने मुझे रीच आउट किया दैट शी इज़ हैविंग वन वर्कशॉप एट अ कैफ़े. और वो cafes, obviously I am a cafe girl. I love going to cafes, I love trying new things, but वो कैफ़े इतना अच्छा था और वो एक इतनी अनरियल सी अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने थोड़ी देर अपने आप को क्वेश्चन किया कि इज़ दिस इवन रियल. अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक ऑफर रिजेक्ट की है जो कि बहुत अजीब थी, लेकिन अब ये एकदम से इतनी अच्छी कैसे आ गई. That was weird guys, I kid you not. This same workshop, जिस कैफ़े में ये वर्कशॉप होनी थी, मैं अभी लाइक उसी के कोई 15-10 दिन पहले अपनी बहन को कह रही थी कि यार ये कैफ़े हमने ट्राई नहीं किया, हमने ये कैफ़े ट्राई करना है, लेकिन इतना दूर है, हम यहाँ कैसे जाएंगे. द अपॉर्चुनिटी केम और उसी कैफ़े में एग्जैक्टली. सो उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की. मैंने थोड़ी देर में बैठ कर मैंने सोचा कि ओके हाउ इज़ दिस, अल्लाह किस तरह इस यूनिवर्स को चला रहा है. लिटरली देयर इज़ सो मच अबंडेंस आउट देयर, सो मच. अबाउट दिस फ्रेंड आई एंडेड द फ्रेंडशिप विद हर, क्योंकि एक पॉइंट पे जिस तरह से दोस्ती ख़त्म हुई और जिस तरह से ख़त्म करनी पड़ गई मुझे, इट लिटरली शैटर्ड मी, लिटरली शैटर्ड माई हार्ट. बट मुझे उससे इतना कुछ सीखने को मिल गया कि अब आई एम नॉट लेटिंग दिस हैपन टू मी एवर अगेन. फेल्ट लाइक अ जोकर, अ लिटरल जोकर. उसके बाद जब मैं उस दोस्ती से निकली, फिर मुझे अपने आप को समझाना पड़ गया कि जो मैंने दिया, जो मैंने किया, इट विल कम बैक टू मी. तो कभी भी डरना नहीं चाहिए करने से, प्यार दिखाने से, प्यार करने से. इफ इट्स टू शॉर्ट, बी लाउड, बी योरसेल्फ. वो खुश, दूसरों को भी खुश करो, दूसरों को हंसाते रहो, कोशिश करो कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो खुश रहें. Show them love and everything, लेकिन अगर कहीं पे it does not work out, it's gonna come back to you in some ways or what. So इस फ्रेंडशिप के बाद I went to this, मेरे क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो I went to this one examination center and if you guys watched my last vlog, you must know मैंने उसमें एंड में बोला था oh my god दुआ ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. इसमें बेसिकली द दुआ इज़ दिस वन गर्ल जिसको मैंने देखा था अपने एग्जामिनेशन सेंटर में. और she looked like she's ticking off everything that I want in a friendship, in a female friendship, you know. और वो बहुत मुझे परफेक्ट लगी, you know, the way she was walking, the way she was carrying herself. मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ. I observed everything. I observed कि वो बोल कैसे रही है. I even observed कि उसकी आवाज़ कैसी है. I observed कि वो चल कैसे रही है, वो ड्रेसिंग कैसी करती है. पढ़ाई वगैरह में क्या है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन I observed that even. Most importantly, she looked mature. Yes. अभी मैंने खैर लाइक उससे दोस्ती शुरू तो नहीं की है. ऑब्वियसली मुझे नहीं पता बनेगी नहीं बनेगी. It's none of my business. ठीक है, I tried my best. लेकिन मुझे लगा कि life has so much for you. कितनी abundance है, क्या पता उससे भी बेहतर लोग एग्जिस्ट करते हो. You never know. Problem was वो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं डर रही थी कि मैं इससे जाके कैसे बात करूँ. बहुत चीज़ें सॉर्ट हो गई. उसके बाद आई हैड दिस, मेरी एक दोस्त थी, उससे लाइक रिलेटेड हो के हम लोग की
हमारी लाइक इंस्टाग्राम पे वी आर टुगेदर नाउ, लेकिन हमारी अभी कोई खास बातचीत नहीं है. लेकिन स्टिल दैट्स नॉट द होल पॉइंट. द पॉइंट इज के पीपल लाइक दैट एग्जिस्ट. यूनिवर्स इज अबेंडेंट. कभी भी सेटल नहीं होना आपने. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. डेली लाइफ में जब आप अब छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटाइज करते हो ना, तभी आपकी ड्रीम लाइफ अनलॉक होगी. आपको अल्लाह ताला वो रियलिटी कभी दे ही नहीं सकता जिसको अभी हैंडल करने की पोजीशन में आप नहीं हो. तो पहले आपको बनाएगा, पहले आप गुजरोगे चीज़ों से, आप थोड़ा ग्रो करोगे. आफ्टर दैट आई रियली स्टार्टेड गेटिंग क्लियर ऑन व्हाट एग्जैक्ट टाइप ऑफ वुमेन आई एम ट्राइंग टू बिकम एंड आई वांट टू बिकम. तो उसके बाद चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है. उसके बाद आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी. आपको बहुत आसानी होगी वंस यू गेट क्लियर अबाउट योर ड्रीम वुमेन. आई ट्रूली बिलीव दैट your life will start mirroring what you are choosing today. Every single day what you are choosing repeatedly आपको नज़र आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में. So if you keep accepting almost, you will never get exactly. The moment you start honoring what actually and what exactly you want, the exactly starts coming in your life. And know who you are, get clear about it, and just start choosing and start making decision according to that. This is all what I'm saying. So we are done with this video. I hope you guys learned something from this, because I don't want you guys to go through experiences I did. In order to learn it, please seek lo. It's gonna be good for you. It's gonna be better for you. So yeah, it's the end of this video. I'm gonna get you guys in another video. Till that, Allah Hafiz.